हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम इस क्लास में फिर से मिल रहे हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, दैट वाज मोशन एंड टाइम। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो हमने लास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द पेंडुलम, दैट इज पेंडुलम। ओके, then in this pendulum we studied that if any heavy weight is suspended with the help of this rigid surface, that is rigid surface, and that is the heavy weight, it is called bob. Okay, that is string and that is the rigid surface. So that structure is called simple pendulum. That is called simple pendulum. Okay. So in last class we studied about the simple pendulum. Now here we see some more features about the simple pendulum. We can see here when the simple pendulums move from its mean position, that is the mean position, to its one side extreme position, that is the extreme position in one side, and that is extreme position in another side. So we can say that is the extreme position, and that is opposite extreme position. We can say when that pendulum moves from its one extreme position to opposite extreme position and come back again at same position, then we can say it complete one oscillation. That is called one oscillation. So that is the definition of oscillation. If we form the definition of oscillation, then we can say when this simple pendulums moves, once again moves that extreme position, we can say it is A, to its another extreme position, that is opposite extreme position, that is called B, and come back again to A position, then we can say it is one oscillation. So that is the definition of one oscillation. Okay, and next one is time period. Next one is time period. So students, we should know about the time period. What is time period? We can say when that pendulum takes how much time to complete one oscillation. If we can say that pendulum complete one oscillation in 2 seconds. यदि ये पेंडुलम आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, बच्चों कितना? 2 सेकंड का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ये कहलाएगा आपका टाइम पीरियड. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड. ओके, कि इफ एनी पेंडुलम कंप्लीट इट्स ऑसिलेशंस, देन इन द कंप्लीटिंग ऑफ वन ऑसिलेशन हाउ मच टाइम इज टेकन बाय दैट पेंडुलम. तो दैट टाइम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, सॉरी वन टाइम पीरियड या टाइम पीरियड. दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें कि एक कन्फ्यूजन हो रहता है बच्चों हमारे दिमाग में, कि वो क्या है कि हम कहते हैं कि हमने पढ़ा कि देयर इज द टाइप्स ऑफ मोशंस. तो उनमें पढ़ा हमने, वन इज ऑसिलेटरी मोशन एंड अनदर वन इज पीरियोडिक मोशन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन? ओके, तो वी कैन से सी हियर. ओके, सो फर्स्ट we should know about the oscillations. Then we already see in this topic with the help of this simple pendulum what is oscillatory motions. Now हम बात करें कि periodic motion क्या होता है. That is topic of our topic, motion and time. तो यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं, 2 चीजें आपको याद रखनी बच्चों. नंबर 1, ओके, कि व्हेन एन ऑसिलेटरी मोशन रिपीट्स
हमने पढ़ा इसको, व्हेन एन ऑसिलेटरी मोशन repeats itself in the fixed interval time, in equal interval, a fixed interval time, equal time interval, it is called it is also called periodic motion. तो स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन को उतार सकते हो, ओके, कि यदि हम बात करें कि जब हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है, वो ऑसिलेटरी मोशन यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका टाइम इंटरवल वो इक्वल होता है, यदि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करता है, क्या करता है, वो रिपीट करता है अपने आप को, तो हम उस ऑसिलेटरी मोशन को कह सकते हैं यहाँ पर पीरियोडिक मोशन। तो हियर इज द कंडीशन, ये कंडीशन आपके पास ध्यान रखनी बच्चों कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन सेम हो सकते हैं कब, यदि हमारे ऑसिलेशंस इक्वल टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करें, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास है कि ऑसिलेटरी मोशन है, वही आपका पीरियोडिक मोशन है, ओके। नंबर सेकंड चीज हम बात करें यहाँ पर, हम कह सकते हैं ऑल पीरियोडिक मोशन could not be oscillatory motion. But all oscillatory motions are periodic in nature. That is more thing. नंबर सेकेंड जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको समझे हम लोग, वी कैन से ऑल पीरियोडिक मोशंस कुड नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। सारे के सारे जो आपके पास पीरियोडिक मोशंस हैं वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी क्या हों, ऑसिलेटरी मोशन हो, ओके। लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि जितने भी आपके ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं, पीरियोडिक, ओके। तो ये आपके पास है कि हमने एक बार ध्यान से सुनना एक बार फिर से कि सभी पीरियोडिक मोशन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऑसिलेटरी टाइप्स के हों, लेकिन सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन कैसे टाइप के होंगे, पीरियोडिक टाइप्स के होंगे, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कंडीशन जो थी हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन आपको फॉलो करनी है यहाँ पर कि आपके पास ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तभी कहलाएंगे जब आपके पास वो किस में होंगे, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर होंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं वो हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, ओके। टाइम पीरियड पे वापस आते हैं हम, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड हम कह रहे हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन oscillation, that is time period, okay. Now with the help of one example we can understand the time period, okay. If we say one pendulum takes
20 सेकेंड टू कंप्लीट how much oscillations? We can say 40 oscillations. Okay, then what will be the time period? So now we can calculate the time period with the help of this formula. Time period is equal to total time divided by number of oscillations. So here is total time, that is 20 seconds, and total oscillations, that is 40. So you can cancel with the help of this 1, 2. Here is 1 by 2 second, or we can say 0.5 second. So that is the time period, 0.5 second. Okay, so we can say in completing 40 oscillations, okay, the time period is remain constant, that is 0.5 second. Okay, so for a given pendulum the time period is constant. One more thing you should remember. Okay, बच्चों आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने कहा कि ये आपके पास एक पेंडुलम है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये आपके पास एक पेंडुलम है, तो कोई भी आपने एक पेंडुलम ले लिया, ओके, तो इस पर्टिकुलर पेंडुलम के लिए यदि आपका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड आता है तो दैट टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, फिक्स रहेगा. ये टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. दैट इज नॉट वेरिएबल, ओके, फॉर दैट पेंडुलम. बट कंडीशन आर हियर, ओके, कि आपको जो इसकी स्ट्रिंग है वो सेम रखनी है. यदि इसकी लंबाई को हम चेंज कर दें, ये लेंथ जो आपके पास है, इस लेंथ को यदि हम चेंज कर दें तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. दैट इज नॉट मैटर, ये आपका कोई मैटर नहीं है कि आप इसको कितना डिस्प्लेस करते हो. यू कैन डिस्प्लेस फ्रॉम हेयर, यू कैन ऑल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम हेयर, ओके, यू कैन डिस्प्लेस फ्रॉम हेयर. कहीं से भी आप इसको डिस्प्लेस करें, टाइम पीरियड हमेशा आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर दैट गिवन पेंडुलम. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है. ओके, चाहे उसको हम कहीं से भी डिस्प्लेस करें वो उतना ही टाइम लेगा उन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपके पास कि इसकी लेंथ यदि हम चेंज कर दें, ओके, इस पेंडुलम की लेंथ को यदि हम चेंज कर दें तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन जो आपके पास बच्चों टॉपिक है हमारे पास, वो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्पीड की जो हमने बात की थी, उस स्पीड की जो और टाइम की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं हम. नेक्स्ट हमने जो बात किया मोशन एंड टाइम यूनिट्स की. ओके, अब बच्चों ये आपने शब्द पढ़ा है यूनिट्स. व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स होती क्या है? ओके, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि यूनिट्स होती क्या है. कि किसी भी आप देखते हो कि आप घर से मार्केट से देखते हैं कि हम ग्रॉसरी का आइटम लाते हैं, सामान लाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं, हम लिखते हैं कि 10 kg, ओके, या फिर 5 kg, या हम वेजिटेबल्स लाते हैं ½ kg एंड 2 kg, लाइक दैट. ओके, तो हमने यहाँ पर देखा एक शब्द आपने पढ़ा, एक kg, किलोग्राम. ओके, तो दैट इज द यूनिट, दैट kg इज यूनिट. ओके, तो हम कह सकते हैं यदि मान लो हम इसको यूं नहीं बता करके हम कहें कि मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं 5 लेकर आया, ठीक है, 5 क्या, ओके, या हम कहें कि तुम कल, ओके, हम कहें कि आप लोग जो कल है कि 9 बजे, हम सिंपल से कहें 9 बजे, ओके, या आपका जो क्लास होगा वो 2 होगा, ठीक है ना, 2. हम कहें कि कल आपकी क्लास जो होगी वो कितने टाइम होगी? 2 टाइम. तो कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट 2, कि आप समझ पा रहे हो कि 2 का मतलब क्या है
कि कल आपकी क्लास 2 होगी, तो 2 घंटे होगी, 2 घंटे या 2 आवर्स होगी, 2 डेज होगी या 2 मिनट्स होगी। ओके, तो विदाउट यूनिट वी कांट एक्सप्लेन द न्यूमेरिक वैल्यू। तो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू दैट यूनिट इज वेरी एसेंशियल। ओके, तो दैट इज यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो बिना यूनिट के अधूरी है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए वहां पर यूनिट का होना जरूरी है। तो यूनिट के बेस पर ही हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वी कैन से ओके लाइक दैट। हम कह सकते हैं कि मैं मार्केट से 5 kg पोटैटो लाया। ओके, तो हम अब समझ रहे हैं यहाँ पर कि 5 किलो लाया। जब हमने पहले बोल रहे थे कि मैं मार्केट से क्या लाया, 5 लाया। ओके, क्या 5 लाया कि 5 आलू लाया। ओके, तो क्या नंबर में 5 लाए, काउंटिंग में? तो यहाँ पर हमने बताया कि 5 kg लाया, तो हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट जो होती हैं वो किसी भी आपके न्यूमेरिक वैल्यू को फुलफिल करती है। ओके, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम की यूनिट होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकेंड। क्या है वो? सेकेंड। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखते हो शॉर्ट में SCC या S भी लिख सकते हैं। ओके, बाकी जो यूनिट्स हैं हम मिनट्स में पढ़ते हैं, हम आवर में पढ़ते हैं, तो दैट इज द डेराइव्ड यूनिट। ओके, जो टाइम की जो मेन यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज सेकेंड। ओके, लाइक दैट हमने बात की डिस्टेंस की यूनिट बात करें तो स्पीड में हमने डिस्टेंस और टाइम दोनों देखे, तो इसलिए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं केवल। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। बाकी आप और बता सकते हो, किलोमीटर भी हमने बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो यूनिट्स होंगी वो डेराइव्ड होंगी। तो मेन यूनिट इज मीटर। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी बच्चों, कभी भी यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो यहां पर, यदि हम लिख दें कि मीटर्स या हम लिख दें सेकेंड्स, नो दैट इज रॉन्ग। इनको कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। क्यों? बिकॉज यूनिट्स यूज विद द हेल्प ऑफ या विद द न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब हमने कहा 10, तो यूनिट के साथ में क्या होती है बच्चों? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो इसीलिए यूनिट्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जाता। ओके, साथ में क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यदि हम स्पीड का यूनिट बनाएं, ओके, यदि हम स्पीड की यूनिट बनाएं तो क्या यूनिट बनती है स्पीड की? तो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि आप डिस्टेंस ले रहे हैं किसमें, आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो इतने घंटे में इतने किलोमीटर चला, तो हमने कहा कि मान लीजिए 50 किलोमीटर चला, ये आपके पास है, इसकी यूनिट लिखते हैं साथ में, किलोमीटर। हमने टाइम लिखा कितने घंटे में चला, हमने कहा 2 आवर में चला, 2 घंटे में। ओके, तो क्या हमारे पास स्पीड की जो यूनिट निकल के आती है देखते हैं हम। यहां पर देखो ये 25 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 25। तो यूनिट्स आपके पास यहीं से मिल जाती है आपको, ये यूनिट मिल चुकी है आपको स्पीड की। ओके, आपने यहाँ लिखा किलोमीटर पर आवर। ओके, या H लिख दो केवल, किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन मीटर पर सेकेंड। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट इन मीटर पर मिनट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट मेनली जो आपकी यूनिट्स आनी चाहिए वो या तो मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए या फिर आनी चाहिए किलोमीटर पर आवर के अंदर। ओके, तो इसके लिए कई बार हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो आपके पास दे दिया कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर चलता है, कितने टाइम के अंदर? हमने कहा कि 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर
10 मीटर चला, आपसे कहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड. ओके, यू कैन राइट हेयर 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज क्या आएगा आपके पास 5. तो आप लिखेंगे 5 मीटर पर मिनट, ऐसे लिखते हैं हम. ओके, तो यहां पर अभी ठीक है आपके पास, लेकिन मेनली हमें क्या है, इन जो यूनिट्स है हमारे पास, ये मीटर के साथ में मिनट्स नहीं आकर के क्या आना चाहिए, सेकंड. तो इसके लिए फिर क्या करें हम. ओके, तो इसके लिए एक और चीज है यहां पर जिसको हम देते हैं कि कन्वर्जन. ओके, कि जो यूनिट्स हैं उनका कन्वर्जन करें हम. तो या तो हम कैसे कन्वर्जन करें कि मिनट्स जो हमारे पास है उसको हम कन्वर्ट कर लें किसमें, सेकेंड्स में. ओके, कि हमें इसके लिए पता होना चाहिए. जो घड़ी हमने देखना सीखी थी बच्चों, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने घड़ी देखना सीखी थी कि हाउ कैन बी वॉच द घड़ी, आई कैन बी कैलकुलेट द टाइम. ओके, कि कैसे हम घड़ी को देखें, कैसे टाइम को कैलकुलेट करें. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 मिनट आपके पास है तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं. ओके, तो वो सेकंड आपको पता होना चाहिए. आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इन 2 मिनट्स देयर विल बी 120 सेकंड्स. ओके, तो इस तरह से आप इन मिनट्स को कन्वर्ट कर लेंगे कितने, सेकंड्स के अंदर. तो फिर जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बट नॉट एक्यूरेट. ओके, सो वी शुड also learn, we should also know how can we change the units. Okay students, तो for today's class that is our last topic. वही क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहे हैं हम लोग कि कैसे हम कैलकुलेट करें, यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करें. ओके, तो हम अगली क्लास में बच्चों देखेंगे कि किस तरह से हम जो यूनिट्स हैं इनको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, और आगे सीखेंगे हम कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पीड. ओके, कि कितना डिस्टेंस को कैसे हम निकालें, स्पीड को हम कैसे निकालें. तो ये सारे क्वेश्चंस के साथ में मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ यहाँ पर. अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.